Hello dear student, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. We will discuss about the different applications and the linear applications of the operational amplifier in the previous lectures. Today, we are going to start our next chapter, that is filters and oscillator. This chapter consists of total 18 marks and it is having the different types of filters along with the oscillator. Before starting the unit or the chapter for filters and oscillator, you must have to know about the vision, mission, program educational outcomes of the Electronics and Telecommunication Department. So let's start with the vision. Here, in the last lectures or in the last units, we have already discussed about this vision and mission of the electronics and telecommunication. We just recall this vision and mission for your beneficiary. The vision of this unit or vision of the electronics and telecommunication department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. टू नर्चर मीन्स ऐसे प्रोफेशिएंट डिप्लोमा इंजीनियर्स को आप लोगों को डेवलप करना है जो इंडस्ट्रियल नीड है. ऐसे एक इंडस्ट्रियल नीड को इसमें लेके मतलब क्या बोलेंगे उसको आप लोग उसको सोसाइटी में कैसे उसको ज़रूरत है उस टाइप से हम लोग हमारा विजन रहेगा कि हम लोग उस टाइप से प्रोफेशनल डिप्लोमा इंजीनियर्स लोगों को दें. Then, what is the mission of the Electronics and Telecommunication Department? First, imparting quality education for to meet society and the industry needs. हम लोग बच्चों को ऐसा क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे जो कि सोसाइटी और इंडस्ट्री की नीड रहेगी. प्रोवाइड इथिकल एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट. जो इथिकल एजुकेशन रहेगा या फिर जो भी वर्क वो करेंगे उसका आउटकम क्या रहेगा, ऐसा आउटकम बेस्ड एजुकेशन दैट इज OBE हम लोग बच्चों को और उनके डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करना हमारा मिशन रहेगा. Inculcating creative thinking through the innovation and the co and extra curricular activities amongst the student. हम बच्चों में एक क्रिएटिव थिंकिंग थ्रू द इनोवेशन मतलब इनोवेशन के थ्रू बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग लाने की कोशिश करेंगे और उनको हम लोग डेवलप करने की कोशिश करेंगे थ्रू द को करिकुलर एंड द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. इन्हांस द लीडरशिप स्किल एंड द एम्प्लॉयबिलिटी और हायर एजुकेशन. बच्चों में एक लीडरशिप स्किल और उसमें एम्प्लॉयबिलिटी की एक ज़रूरत, जिस टाइप का एम्प्लॉई उन्होंने होना चाहिए उनके स्किल को एनहांस करने की कोशिश हम करेंगे. Then the last one is seeking continuous improvement of knowledge and skill. बच्चों का कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उनका नॉलेज और स्किल उनके बढ़ने चाहिए, इसकी कोशिश हम हमेशा करते रहेंगे. Then last one is the program educational objectives. What are the program educational objectives of electronics and telecommunication department? One is the provide job oriented skill set, socially responsible and environment friendly solution. मतलब बच्चों में ऐसा स्किल सेट प्रोवाइड करेंगे उसमें जो कि सोशली रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए स्टूडेंट, उसके बाद में फ्रेंडली सॉल्यूशन दे सके टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड. मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो वो लोग सोसाइटी में इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ये भी हमारा एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव रहेगा. देन the adapt the state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment and promote higher education. हम लोग बच्चों में ऐसा एक मतलब एक कला ऐसी बच्चों में प्रोवाइड करेंगे कि उनमें से वो लोग मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड में भी वर्क कर सके विद द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड और वो हायर एजुकेशन के लिए भी हम बच्चों को प्रमोट कर सके. मतलब वो डिप्लोमा के बाद जॉब भी कर सकते हैं या फिर हायर एजुकेशन उनकी अगर इच्छा है तो वो भी ले सकते हैं. इन हिसाब से हम बच्चों को दोनों तरीके से उनको डेवलप करने की कोशिश करेंगे. देन provide solutions to broad-based problems individually and as a team member by communicating effectively in the world of work. ऐसा मतलब स्टूडेंट्स ऐसे प्रोवाइड हो या फिर ऑब्जेक्टिव हमारा एक ऐसा रहेगा कि जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे
खुद के डेवलपमेंट और एज ए टीम मेंबर तो कैसा भी वर्क करे, या तो वो इंडिविजुअली करे या फिर टीम में करे, उनका जो वर्क है वो कम्युनिकेटिवली इफेक्ट होना चाहिए, मतलब उनका कम्युनिकेशन के साथ साथ उनका वर्क भी इतना इफेक्टिव होना चाहिए इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ये भी कोशिश हमारी रहेगी। देन what is the course outcome? The course outcome for this unit is मेंटेन फिल्टर्स एंड ऑसिलेटर यूज इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट फिल्टर के डिज़ाइन करेंगे, ऑसिलेटर को डिज़ाइन करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैसे यूज़ करना है ये भी हम लोग देखेंगे। तो उसको ये सब यूज़ करने के बाद उसको कैसे मेंटेन करना है ये भी हम लोग ये यूनिट में पढ़ने वाले हैं। CO and the PO mapping. Here the CO4 getting mapped with the PO 1, 2, 3, 4, 6 and 7. आप लोगों को फिल्टर्स के डिज़ाइन में न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज अलॉन्ग विद द मैथमेटिकल बेस का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे PO1 को मैप किया। उसके बाद में कुछ हम लोग उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, उसका एनालिसिस करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन कर रहे हैं इसलिए आप लोगों का PO2 भी यहाँ पे मैप हो रहा है, क्योंकि उसका एनालिसिस कर रहे हैं ना हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों का PO2 भी यहाँ पे मैप्ड हो रहा है। देन आफ्टर दैट देयर आर सम प्रैक्टिकली बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स हियर। एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म करना है तो उसके लिए कुछ टूल्स भी लगेंगे या फिर एक्सपेरिमेंटल किट भी लगेगा, इसलिए यहाँ पे PO3 भी मैप हो रहा है। देन जो भी सर्किट्स आप डिज़ाइन कर रहे हो, सर्किट्स में आप लोग क्या करने वाले हो, डिज़ाइन करने वाले सर्किट्स में आप लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर सर्किट्स सोसाइटी के लिए ये डिज़ाइन करोगे उसमें भी आप लोग फिल्टर्स का यूज़ करने वाले हो, इसलिए आप लोगों का PO4 भी यहाँ पे मैप्ड हो रहा है। देन PO6 एंड PO7 दैट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एंड आप लोग इंडिविजुअल और टीम मेंबर में भी काम कर सकते हो या फिर कुछ माइक्रो प्रोजेक्ट्स भी हम लोग यहाँ पे वर्क करने वाले, इसलिए आप लोगों का PO6 भी यहाँ पे मैप हो रहा है अलॉन्ग विद द PO7। दिस इज द CO एंड PO मैपिंग। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट। मतलब आप लोग कभी भी पढ़ने के लिए जाते हो तो व्हाट आर द प्रोग्राम आउटकम। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम आउटकम्स इट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स आउटकम, मतलब आप लोगों का ब्रांच है उसका आउटकम, और CO दैट इज द कोर्स, मतलब लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, दिस इज द कोर्स, उसका आउटकम। ये दोनों का मैपिंग कितने लेवल तक हो रहा है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उस हिसाब से आप लोगों का सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों को समझना ज़रूरी है। देन द लर्निंग आउटकम्स। अभी देखो लर्निंग आउटकम्स मतलब क्या, जैसे ही आप लोगों का सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसका कंप्लीशन होने के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हो, मतलब व्हाट विच वर्क यू आर गोइंग टू बी एबल। तो उसके लिए देखो सबसे पहले कि आप लोग वर्किंग ऑफ द गिवन टाइप, जो भी फिल्टर आपका दिया रहेगा उसका वर्किंग आप लोग एक्सप्लेन कर पाओगे, डिस्क्राइब कर पाओगे। देन एक्सप्लेन विथ स्केचेस द प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द गिवन टाइप ऑफ फिल्टर। उसके कुछ प्रोसीजर रहेगी डिजाइनिंग की, फिल्टर डिजाइनिंग की प्रोसीजर, उस प्रोसीजर से आप डिसाइड कर पाओगे कि ये कौन से ऑर्डर का कौन सा फिल्टर है। देन उसके बाद में अपन कुछ न्यूमेरिकल भी उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे, तो यू कैन बी एबल टू कैलकुलेट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन टाइप ऑफ फिल्टर। प्रिपेयर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द गिवन टाइप ऑफ filter with justification. Now let's start with the types of filter. So let's start with our next type of filter, that is the band pass filter. अभी जैसे आप लोगों ने लो पास फिल्टर देखा, हाई पास फिल्टर देखा। लो पास फिल्टर जो था वो लो फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करके लेके मतलब पास करता था। देन उसके बाद में हाई पास फिल्टर देखा था, वो हाई पास फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता था, और उसके जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स थे वो भी किस टाइप से थे अपन ने वो भी देखा। हाउ दैट सिग्नल गेट ट्रांसफर फ्रॉम स्टॉप बैंड टूवर्ड्स द पास बैंड, और पास बैंड से कैसे फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र होती थी और पास होती थी, ये भी हमने हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर में पढ़ा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इट इज़ दैट इज़ द बैंड पास फिल्टर, राइट। अभी बैंड पास फिल्टर क्या मतलब, बैंड दैट इज द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर देयर, क्या है वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को जो पास करता है, मतलब एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को पास करता है, दैट इज नथिंग बट योर band pass filter. So here it is like that, it passes the particular band of frequencies, it passes the particular band of frequencies and reject all other frequencies, and rejects all other
frequency, and this band pass filter consists of two different types. One is the wide band pass filter and the second one is the narrow band pass filter. क्या है? First type it is the wide band pass filter and the second one is the narrow band pass filter. Now let's start with the first type, that is the wide band pass filter. Now कैसे डिसाइड करना है कि दिस इज अ वाइड बैंड पास फिल्टर? कैसे डिसाइड करना है कि दिस इज अ वाइड बैंड पास फिल्टर? एज इट गिव्स द क्वालिटी फैक्टर लेस दैन 10. इसका क्यू फैक्टर, दैट इज क्यू इज लेस दैन 10 अगर रहता है, देन इट इज अवर वाइड बैंड पास फिल्टर. देन ये फॉर्म कैसे होता है? तो अपन ने डिफरेंट LPF देखे, HPF देखे, दैट इज द लो पास फिल्टर एंड द हाई पास फिल्टर. तो इन दोनों को कंबाइन करके, जैसे यहाँ पे आप लोगों का अगर V1 है, यहाँ से आप लोगों ने एक क्या लगाया, हाई पास फिल्टर, और द सेकेंड वन इज द लो पास फिल्टर, और यू विल गेट द आउटपुट. दैट इज दिस इज अ कम्बिनेशन ऑफ लो पास फिल्टर एंड द हाई पास फिल्टर. अभी आप लोगों को डायग्राम सभी को पता है कि कैसे डिसाइड करना है कि दिस इज अ लो पास फिल्टर और दिस इज अ हाई पास फिल्टर. तो देखो, सबसे पहले अपन ने लो पास फिल्टर को पढ़ा था. तो देखो, दिस डायग्राम शोज विच इज कंसिस्ट ऑफ द हाई पास फिल्टर एंड द लो पास फिल्टर. बराबर है? तो दिस इज अ डायग्राम विच इज नथिंग बट योर लो पास फिल्टर. आप लोगों को मैंने देखा था, बताया था कि the input always given to the non-inverting terminal, input always given to the non-inverting terminal, and here the resistor is against the इनपुट साइड, और उसके सीरीज में आप लोग कनेक्ट करोगे क्या, कैपेसिटर. बराबर है? तो ये हो गया आप लोगों का क्या, लो पास फिल्टर. वहीं अगर मैं रजिस्टर और कैपेसिटर एट द इनपुट साइड के जो भी रजिस्टर और कैपेसिटर है उसको अगर मैं इंटरचेंज करती हूँ या फिर रिप्लेसेबल करती हूँ, दोनों के जो साइड है वो चेंज करती हूँ, तो यू विल गेट द हाई पास filter. You will get the high pass filter. So this is a wide band pass filter which is a combination of high pass filter and a low pass filter. तो फिगर में आई होप कि फिगर सभी लोगों को समझ में आ गया. तो देखो, अभी सबसे पहले कि जब भी फिल्टर अपन पढ़ते हैं तो फिल्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मोटो होता है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. दैट इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. सो I also want to achieve a band pass response. I also want to achieve a band pass filter. For that, मतलब देखो, अभी स्टार्ट करते हैं. एकदम सिंपल सा इक्वेशन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ गेन के लिए इक्वेशन निकालना है. टू अचीव फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, टू अचीव फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, योर FH दैट इज हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द FL. सॉरी, ग्रेटर दैन बोल रहे हैं यहाँ पे. FH इज ऑलवेज ग्रेटर दैन FL. बराबर है? तो देखो, यहाँ पे आप लोगों को अगर रिस्पॉन्स चाहिए तो यू मस्ट हैव टू कंसिडर दैट इज द गेन, मतलब क्या बोलेंगे उसको आप लोगों को, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लो पास फिल्टर मस्ट बी ग्रेटर दैन दैट ऑफ द हाई पास फिल्टर. समझ में? अभी आप लोगों को पता है कि द वोल्टेज गेन ऑफ द बैंड पास फिल्टर कैसे निकालते हैं. तो वोल्टेज गेन ऑफ द बैंड पास फिल्टर, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज गेन ऑफ लो पास फिल्टर एंड द हाई पास फिल्टर. तो आप लोगों को जब गेन ऑफ द बैंड पास फिल्टर इज VO upon Vin is equals to gain of first order low pass filter into gain of first order high pass filter. Is it clear to everyone? So this is a complete gain of the band pass filter. अभी इसको कैसे लिखना है? तो देखो, प्रोडक्ट के फॉर्म में अपन इसको लिखेंगे तो ये आता है इज इक्वल्स टू AF1, इसका गेन रहेगा अपना, सॉरी यहाँ लो पास फिल्टर ले रहे पहले, इसलिए इसका गेन रहेगा AF1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस F अपॉन FH टू द पावर 2, इसका होल स्क्वायर, इनटू अभी गेन ऑफ द हाई पास फिल्टर. गेन ऑफ द हाई पास फिल्टर आता है AF2, सबने ये कैलकुलेट किया है ऑलरेडी, F अपॉन
FL डिवाइडेड बाय 1 प्लस F अपॉन FL का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट की है इन द डेरिवेशन ऑफ हाई पास फिल्टर एंड द लो पास। हाउ इट इज कैलकुलेटेड ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। देन फाइनली इक्वेशन मिलेगा आप लोगों को AF12 मतलब दोनों का गेन इनटू F अपॉन FL बराबर है डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस F अपॉन FH का होल स्क्वायर। इसको अपन ऐसे लिखते हैं होल स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस F अपॉन FL का होल स्क्वायर। दिस इज द गेन ऑफ द किसका बैंड पास फिल्टर का बराबर है। नाउ दिस इज द ओवरऑल गेन ऑफ द फिल्टर मतलब AF12 इट इज द ओवरऑल गेन ऑफ द बैंड पास फिल्टर। वाइड बैंड पास फिल्टर कैसे करता है कि लेसर देन उसका जो क्यू फैक्टर होता है लेस देन 10 हिंस द रिस्पॉन्स इज वाइडर मतलब उसके कारण फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ज़्यादा बड़ा आएगा एंड दिस कैन बी मेड नैरो बैंड पास फिल्टर फिगर। अगर आप लोगों का क्यू फैक्टर अगर ग्रेटर देन 10 है तो ये जो आप लोगों का फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगा नैरो हो जाएगा जो कि आप लोगों का मिलेगा किसमें इन द केस ऑफ नैरो बैंड फिल्टर। सो द रिलेशन ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसका रिलेशन ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा तो लिखते अपन रिलेशन फॉर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी relation for cutoff frequency that is Q factor is equals to cutoff frequency upon bandwidth. Q factor is equals to cutoff frequency upon bandwidth and here the cutoff frequency it is a product of low pass frequency and the high pass frequency. Higher cutoff frequency and the lower cutoff frequency upon bandwidth. bandwidth सभी को पता है कि हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी तो इसको भी अपन लिखेंगे अंडर रूट ऑफ FH इंटू FL अपॉन FH माइनस FL। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर क्यू फैक्टर ऑफ इसका बैंड पास फिल्टर। नाउ लेट्स गो फॉर द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। कैसे आएगा देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालते टाइम एक ध्यान में रखना है दिस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑलवेज इन द बिटवीन द गेन एंड द फ्रीक्वेंसी। और जैसे कि ये वाइडर है वाइडर होने के कारण इट इज ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द स्टॉप बैंड एज वेल एज द पास बैंड। तो देखो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो पहले बढ़ते जाएगा देन इट इज कांस्टेंट देन अगेन इट इज डिक्रीजेस राइट। ये पहले बढ़ते जाएगा देन इट इज़ कांस्टेंट एंड देन डिक्रीजेस। तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो रहेगा दैट इज़ द 0.707 AF बराबर है। उसके बाद में आप लोगों का यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी आएगा दैट इज़ द ये रहेगा आप लोगों का कहाँ ये रहेगा दिस इज अ पास बैंड this is a pass band and this is a stop band. This is a stop band. It is also a stop band. तो this is a frequency response for the इसके लिए ये रहेगा -20 dB पर डिकेड और ये रहेगा +20 dB पर डिकेड और ये रहेगा आपका गेन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो देखो यहाँ पे दिस इज अ कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फॉर द बैंड पास फिल्टर। कैसे आया आप लोगों को समझ में आया कि इसका क्वालिटी फैक्टर इट इज़ लेस देन दैट ऑफ द 10 उसके कारण आप लोगों का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऐसे बढ़ता जाता है जिससे आप लोगों की फ्रीक्वेंसी क्योंकि ये कितने बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है तो आपका पास बैंड क्या होगा वाइडर होगा। ठीक है तो दिस इज अ क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बताया। तो इसके बाद में अपन एक देखते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन द बैंड पास फिल्टर। देखो स्टूडेंट यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले यू मस्ट गो थ्रू द डिज़ाइन स्टेप्स कि कौन से रिक्वायर्ड स्टेप्स आप लोगों के हैं। जैसे आप लोगों ने लो पास फिल्टर को डिज़ाइन किया था फिर हाई पास फिल्टर को भी डिज़ाइन किया था
वही तरीके से आप लोगों को यहाँ पे लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर को डिज़ाइन करना है एंड देन द कंबाइन करके दोनों के वैल्यू वहाँ पे चूज करना है और डायग्राम निकालना है। ठीक है, तो डिजाइनिंग फॉर एलपीएफ मतलब लो पास फिल्टर के लिए क्या क्या है, तो सबसे पहले अपन एक हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेंगे, एफएच वो गिवन भी रह सकती है, उसमें नहीं रही तो वी विल कंसीडर हियर। उसके बाद में एक कैपेसिटर की वैल्यू लेना है विच मस्ट इक्वल टू और लेस देन दैट ऑफ द 1 माइक्रोफैरड। और उसके बाद में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, उस वहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ऑलरेडी अपन ने आर की वैल्यू कैलकुलेट की। बस द फॉर्मूला फॉर आर इज इक्वल टू 1/2π/fh इंटू सी। फाइनली सिलेक्ट द वैल्यूज ऑफ R1 एंड RF डिपेंडेंट ऑन द डिजायर्ड पास बैंड। तो गेन भी अपन यहाँ पे कैलकुलेट करें। सेम आप लोगों को हाई पास फिल्टर के भी कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, जिसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि लो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहती है किसकी, हाई पास फिल्टर की, तो उसको अपन सबसे पहले चूज करेंगे। देन वी विल गो फॉर द वैल्यू ऑफ सी विच मस्ट इक्वल टू और लेस देन दैट ऑफ द 1 माइक्रोफैरड। उसके बाद में अपन आर की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे एफ एच था, यहाँ पे एफ एल आएगा बिकॉज वी विल कंसिडर हियर कौन सा, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द हाई पास फिल्टर। एंड देन वी विल गो फॉर द गेन ऑफ द high pass filter, that is AF2 is equals to 1 plus RF upon R1. So this is all about the designing steps of the न्यूमेरिकल। तो लेट्स स्टार्ट्स विथ हियर न्यूमेरिकल। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, देखो क्या है। तो न्यूमेरिकल डिजाइन अ वाइड बैंड पास फिल्टर, क्या दिया है, डिजाइन अ वाइड बैंड पास फिल्टर विथ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL is equals to 5 kilohertz and the higher cutoff frequency FH is equals to 15 kilohertz। क्या दिया हुआ है, 15 kilohertz and pass band gain is equals to 2। pass band gain is equals to 2। C is equals to वैल्यू दिया है 0.05 माइक्रोफैरड एंड C1 is equals to 0.01 माइक्रोफैरड का यहाँ पे वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले जाएंगे डिजाइनिंग ऑफ LPF, स्टेप 1 डिजाइनिंग ऑफ LPF, राइट। उसका सबसे पहले स्टेप क्या है कि आप लोगों को C का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, C डैश इज इक्वल टू 0.01 माइक्रोफैरड गिवन, बराबर है। उसके बाद में आप लोगों के पास क्या गिवन है, FH इज इक्वल टू 15 किलो हर्ट्स, 15 किलो हर्ट्स की वैल्यू गिवन है। नाउ फर्स्ट स्टेप दैट इज द R की वैल्यू निकालना है। R इज इक्वल्स टू 1/2π FH इंटू C। यहाँ पे 1/2π FH की वैल्यू क्या है, 15 इंटू 10⁻³ इंटू C की वैल्यू है 0.01 इंटू 10⁻⁻6, बराबर है। सो दैट वी विल गेट द वैल्यू दैट इज द 1.061 किलो ओम। सभी को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है घर पे बैठ के, आप लोगों को पूरे वैल्यूज कैलकुलेटर पे पुट करना है और वैल्यू निकालना है। देन गेन क्या है, गेन जैसे आप लोगों का AF1 एंड 2 है, बराबर है। तो यहाँ पे गेन को कंसिडर करेंगे लो पास फिल्टर के लिए A1 इंटू A2, दोनों का गेन दिया है ना, पास बैंड गेन बोला है तो दोनों का आएगा, इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। हेंस A1 is equals to A2 is equals to under root of 2, under root of 2, and so that we will having the formula that is AF2 is equals to 1 plus RF upon R1, 1 plus RF upon R1। अज्यूम करते, अज्यूम R1 is equals to 10 किलो ओहम, सो दैट वी विल गेट द वैल्यू। यहाँ पे AF2 की वैल्यू पुट करना है आप लोगों को, RF की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी 4.142 किलो ओहम, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लो पास फिल्टर हो गया। नाउ स्टेप 2 दैट इज वी विल हैव टू गो फॉर द हाई पास फिल्टर। स्टेप 2 डिजाइनिंग ऑफ हाई पास फिल्टर, डिजाइनिंग ऑफ हाई पास फिल्टर। यहाँ पे लेट C इज इक्वल्स टू 0.01 माइक्रोफैरड ऑलरेडी गिवन इन द न्यूमेरिकल, राइट।
0.0 नहीं, यहाँ पे 0.05 दिया है आप लोगों को C इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल में. देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R, दैट इज 1/2 पाई FL इंटू C. 1/2 पाई FL इंटू C. पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द पैरामीटर्स. 2 पाई FL की वैल्यू कितनी है? FL की वैल्यू है 5 किलोहर्ट्ज, तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू C इज इक्वल्स टू 0.05 इंटू 10⁻⁻6. So that we will get the value here 0.637 kilo ohm. This is our R. This is our R. Now for the gain, here the same steps as it is from the low pass filter. A1 is equals to A2 is equals to 2. So A1 is equals to A2 is equals to root 2. Right? Then calculate the value of AF1 is equals to 1 plus RF upon R1. Consider R1 is equals to 10 kilo ohm. So that RF we will get 4.14 kilo ohm. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रजिस्टर ऑफ द हाई पास फिल्टर एंड द लो पास फिल्टर. दिस द कंप्लीट न्यूमेरिकल फॉर द वाइड बैंड पास फिल्टर, जिसमें आप लोगों को आर की वैल्यू निकालनी है, गेन निकालना है. गेन गिवन, अगर आप लोगों का गेन पास बैंड गेन गिवन है तो दोनों को कंसिडर करना है, A1 एंड A2 को, और उस हिसाब से आप लोगों को निकालना है. तो दिस इज ऑल अबाउट द वाइड बैंड पास फिल्टर. हमने पढ़ा कैसे उसका सर्किट है, कैसे उसको अपन ने कंबाइन किया लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर को, और कैसे आप लोगों का न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व हुआ. सो थैंक यू सो